वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज आर्ग्युबली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस इन द मीडिया विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट। ही इज एन अकॉम्प्लिश्ड क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डर, ब्रॉडकास्टर, एंकर पर्सन एंड राइटर। और आप इनको शायद जानते हो इनके पीटीवी स्पोर्ट्स पे जो शो है गेम ऑन है से, एंड हिज यूट्यूब चैनल कॉट बिहाइंड। ही इज द हेड ऑफ पीटीवी स्पोर्ट्स एंड पीटीवी ग्लोबल, नन अदर देन डॉक्टर नुमान नियाज। और इनसे आज हम बात करेंगे जो चेंजेस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इन द स्क्वाड गोइंग इनटू द वर्ल्ड टी20, द वर्ल्ड टी20 इटसेल्फ। और आप इनसे कुछ इनके किस्से भी मजेदार पूछेंगे ऑन दिस वॉल्यूम ऑफ CRIQAZI Diaries. Have a look at that, Miles up, oh, it's nearly taken someone out the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket. Well, now we get to 24. वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट द टाइम। ऑफ कोर्स इट इज माय एक्सट्रीम प्रिविलेज टू हैव यू ऑन द शो एंड या लवली टू हैव यू हियर। हाउ आर यू डूइंग? Yeah, thank you so very much. Our pleasure is mine actually. Or I am actually impressed. I'm truly impressed the way you conduct the show. And way to go. More power to you. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और सब व्यूअर्स को मैं बताता चलूं कि अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दोस थिंग्स दैट आई मेंशन्ड इन द इंट्रो, डॉक्टर नुमान नियाज is also an avid collector of cricket memorabilia. In fact, he possesses the largest collection of cricket memorabilia in the history of cricket. Or he has just documented all of that in a 2-volume series of books called Collector's Eye. So do, if you live in Pakistan, go to your nearest bookstore. You can get a copy, especially if you're a cricket buff. And also, he has been the official historian of the Pakistan cricket team. And इनकी जो हैं 4 किताबें हैं, 4 volumes of a book series called Fluctuating Fortunes, in which he covers the history of Pakistan cricket. So go do check that out. एक controversial book भी है, Story of Betrayal Pakistan Cricket. Of course. वो भी आप लोग please check out करना. So without further ado, Doc, I think the best place to start, of course, is that there have been 4 recent changes to the Pakistan T20 squad. Haider Ali is in, Fakhar Zaman, Sarfraz Ahmed for Khushdil, Azam and Hasnain, and then Shoaib Malik was a late entrant for the injured Sohaib Maqsood. तो अब इन changes के बाद आपके ख्याल से इस पाकिस्तान टीम, is it looking better? क्या वो अब अच्छी तरह compete कर सकते हैं इस World T20 में? Yeah, it surely looks much better. But अगर 4 की तो 6 कर देते, शर्जील को भी ले लेते और शाहनवाज धानी को भी ले लेते. बट शर्जील का I personally feel, क्योंकि I can't debate, रमीज हसन राजा always had this in his mind कि जिनके tainted past हैं उन players को they should not be representing Pakistan, so zero tolerance to corruption. लोग बहुत सारी बात करते हैं मोहम्मद नवाज की, बट मोहम्मद नवाज का indulgence नहीं थी, it was only failure to report. Right. So at the end of the day, शर्जील एक बहुत बड़ा miss out है. वो जिस form में था, just the way he was whacking the ball, और अभी उसने 100 किया है for Sindh. But unfortunate है, एक policy है, zero tolerance है, और आपको एक कड़वा घूंट पीना पड़ा. शाहनवाज धानी, I'm a great fan of धानी, और मैं बल्कि धानी को तब से जानता हूँ जब आपने नाम भी नहीं सुना होगा. It was like सिंध के शहजादे, ये कराची किंग्स ने एक टैलेंट हंट किया था. तो राशिद लतीफ ऑब्वियसली हमारे साथ होते हैं गेम ऑन है, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, आपके शो में भी आए. वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि वो आपके शो में आए. मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं डॉग. तो वो उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा डॉग, एक आमिर बरोही है और एक शाहनवाज धानी है. हाय 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 हाय. और मैं कहा नाना छोड़ यार, क्या बातें कर रहा है, ये कौन है? कहते ये इंटीरियर सिंध के हैं और ये बड़े तगड़े. And then I would not say, but we all orchestrated his entry into Grade 2 Sindh team for the Quaid-e-Azam Trophy. And then he played in the domestic season last year. और इसका अभी थोड़ा सा मैं ये समझूंगा कि ग्लूट और टांगे जो हैं वो slightly weaker हैं, लेकिन he is a superstar in the making. उसकी resilience, attitude, aptitude, skill, pace, ability, energy, वो मेरा ख्याल है हसन अली की तरह एनर्जाइज्ड है, या शदाब एक टाइम पे होता था, अब थोड़ा सा परप्लेक्स नजर आता है. सो शाहनवाज धानी मिस्ड आउट. मुझे समझ नहीं आई क्यों. सही. अब वो क्यों जो है, ऑब्वियसली बाबर आजम में वेल हैव मोर ट्रस्ट इन हारिस रऊफ बॉलिंग द डेथ ओवर्स, और विद हसन एंड शहनशाह अफरीदी. तो आपका अगर वसीम जूनियर को आपने बैटिंग की डेप्थ बढ़ानी है, उसको खिलाना है, तो फिर इन एनी केस इररिलेवेंट हो जाता था कि धानी हो या ना हो. बट आई पर्सनली फील कि धानी कुड बी पाकिस्तान स्ट्राइक बॉलर across all formats. मैं कह रहा हूँ, interestingly,
आपने धानी को 5 डे क्रिकेट के लिए वेस्ट इंडीज लेके टेस्ट मैचेस खिलाने के लिए आपने उधर नहीं खिलाया. पीएसएल में उसने 20 विकेट्स ली थी एंड ही एंडेड ऑन द टॉप. और उसके बाद आपने अभी नेशनल T20 में भी देखा कुछ प्लेयर्स का ये ख्याल है कि ही इज हैविंग अ पर्पल पैच और अभी ये टेस्ट नहीं हुआ. जब इसको कुट लगेगी उसके बाद विल ही बी एबल टू स्टैंड एंड डिलीवर. सो वो ठीक है, ये एक इबाम हो सकता है, बट आई पर्सनली फील कि व्हेन द आयरन इज हॉट तो कहते हैं आयरन इज रेड, तो बस कर जाना चाहिए था. So he should have been drafted in and he could have turned into a hero in this World Cup at the Emirates. PSL भी उसने Emirates में गेम किया है, sustained pace के साथ करता है over 141-42 kilometers per hour and he's enthused, he's filled with energy. Right. So that is a miss out. अब आपने एक और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ. Were we wrong initially when we picked Khushdil Shah and we picked Azam Khan? Or are we wrong now? I think we were wrong then. I thought कि ठीक है Azam Khan, I think he's a very promising talent, but I felt personally premature selection थी. I feel like थोड़ा और उनको experience मिल जाए, then he can be considered, and a little bit he can improve on his fitness a bit more. Khushdil Shah, Doc, I like him, but the problem with him is even when he goes on to make a big score, आप देखें पहली 12 बॉलों में खुशदिल का हमेशा 8 से 10 स्कोर होता है. तो अगर वो वहां पे फिर आउट हो जाता है तो मुझे फिर लगता है कि maybe he's not the perfect pick. And Hasnain had been going for a lot of runs. फिर हैदर अली आपके पास अब एक लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूट आ गए हैं सोहेब मकसूद के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली मकसूद हैड टू पुल आउट बिकॉज ऑफ एन इंजरी, बट ही कैन प्ले इन द टॉप 3 एंड ही कैन प्ले अग्रेसिव क्रिकेट. फिर शोएब मलिक जो हैं, I feel, Doc, when you're 30 for 3 against Afghanistan और राशिद खान आपको बॉलिंग करा रहा हो, there is no better player to come out than Shoaib Malik. आपके coming down the ground, spin पे he is your best player. He's a fantastic boundary rider. Experience बहुत है, dressing room presence है, and he's the sort of batsman who can carry your innings. वो bat through कर सकते हैं और ये World Cup में शायद 150-160 तक score enough हो. तो I think he is a good selection. And then of course Fakhar Zaman, he's done it before in the Champions Trophy. तो वो big match experience उनके पास है. तो इसलिए मैं समझता हूं that is also a good selection. And then Sarfaraz, of course, low and slow wickets. He's a busy batsman. इधर उधर वो सिंगल निकाल सकता है. So I think backup keeper should be a second best keeper in the circuit, and I think Sarfaraz ठीक है. शाहनवाज धानी की बात आपने की, and I agree he has not put a foot wrong ever since he's burst onto the scene. उनने सिर्फ impress ही किया है. I feel like Pakistan has missed a trick over here कि उनको अभी तक डेब्यू नहीं कराया. पहले तो उनकी सिलेक्शन टेस्ट में कर ली, परफॉर्मेंस T20 में थी तो वो थोड़ी समझ नहीं आई. But I really feel like शाहनवाज धानी should have played a few T20Is by now. और उससे ये होता कि अगर आप उनको पिक करते then he wouldn't have started international cricket right at a World Cup. So maybe counter argument ये है कि he might be a bit too raw and you missed a trick by not playing him before. एक चीज डॉग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. I personally feel that you are one leg spinner short, considering शादाब खान की फॉर्म उस तरह लगी भी नहीं है, and you did have जाहिद महमूद and उस्मान कादिर in the wings, और स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे और 2 leg spinners तो रमीज राजा भी काफी कहते आ रहे हैं, और मैं भी बिलीव करता हूं कि going in with 2 leggies can be a very good attacking option. So that's where I feel Pakistan missed a trick. और आसिफ अली potentially could have made way. ठीक है, डोमेस्टिक में काफी अच्छा रिकॉर्ड है, but 29 T20Is, 344 runs and an average of 16 point something. That does not cut it for me, and I really feel like we could have done with another leg spinner. तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ब्रिलियंट, आपका एक अच्छा, आपने मुझे बर्ड्स आई व्यू दिया. एक तो बहरम जो हमें एक अंडरस्टैंड करनी है चीज, अभी आपने बोला शोएब मलिक का, देयर कैन बी नो बेटर बैट्समैन जो मिडिल में T20s में, जैसा आपने कहा, कमिंग डाउन द ट्रैक, प्लेइंग अगेंस्ट द स्पिनर, ब्रिलियंट इसकी परफॉर्मेंस रही PSL में, स्ट्राइक रेट ऑफ 139, नेशनल T20s में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. इन द लास्ट 10 years जितने भी ICC टूर्नामेंट्स ये खेला है, he is averaging 18.35 और इनका कोई 50 नहीं है पिछली 25 इनिंग्स में, और he mucks it up when it comes to the ICC major tournaments. और this is going to be his 6th World T20. He only missed out 2010. बाकी ये सारे खेले हैं पहले से लेके अभी तक. I have been a great advocate कि current circumstances में जहाँ पे मुझे खुशदिल शाह नजर आता था, जहाँ पे मुझे आजम खान नजर आता था, तो मैं समझता था कि जुल्म है पाकिस्तान टीम के साथ कि we are missing out शोएब मलिक. And I'm very happy that whatever unfortunate, ironic है कि सोहेब who was in actually had to sit out, हालांकि वो momentum pick कर रहा था national T20s में. So शोएब मलिक का मुझे सिर्फ एक psychological edge नजर आता है कि शायद that this is his swan song, this is his last hurrah, so he would definitely like to retire as a champion.
So let's hope and let's keep our fingers crossed. But याद रखिएगा कि हमेशा मकअप किया है when it came to the bigger stage. Absolutely. अभी मुझे recently बल्कि राशिद भाई ने numbers भेजे हैं and his averages are quite pathetic for the lack of a better word. But वही बात है, last swan song की बात की आपने, 100% agree, and I think Shoaib Malik will want to end his career on a high. Of course, he has been a thorough professional, especially since he came back into the team 2015 के World Cup के बाद. तब से अगर आप इनका करियर देखें तो he has done really well for Pakistan, और ड्रेसिंग रूम इन्फ्लुएंस काफी है. The juniors really look up to him, तो I think वहां पे जो एक मेंटल एज दे सकते हैं शोएब मलिक. अगेन मैं आपके शो में कहना नहीं चाहता यू आर अ यंगस्टर, बट ये डबल एज नहीं है, ये बल्कि बहुत ही ये डबल एज शोड है कि वो whether they look up to him or whether they don't look up to him, ये भी एक एनिग्मा है. मैं बोलना नहीं चाहूंगा यहाँ पे. But now खुशदिल शाह का आपने जिक्र किया, he came from the ranks, he has the ability. याद रखना बहराम कि अभी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट चेंज हो गई. It is not only about power hitters. या तो आपके पास exceptional power hitters हों, likes of Kieron Pollard या Andre Russell, और जिससे हम देखते हैं even Nicholas Pooran is amazing. वेस्ट इंडीज की एक टीम है जो 8-9 तक पावर हिटिंग हो रही होती है. अदरवाइज आप देखोगे न्यूजीलैंड में कहीं आपको मार्टिन गप्टिल नजर आ जाएगा, आपको वो क्या है अपना डेविड मिलर नजर आएगा साउथ अफ्रीका में, हार्दिक पांड्या आप इंडिया में देखोगे. सो क्वालिटेटिवली एक तो पावर हिटिंग का कॉन्सेप्ट तो जरूर है. सेकेंडली गेटिंग डीपर इनटू T20 इंटरनेशनल जो मेंटालिटी है, आप देखोगे कि इंडिया के मेजॉरिटी गेम ऑफ एंगल्स खेलते हैं, वेदर इट्स रोहित शर्मा, whether it is Virat Kohli, even the new guy Surya Kumar Yadav, Sky जो है, ईशान किशन, even ऋषभ पंत हो गया, या down to Ravindra Jadeja और हार्दिक पांड्या. So this is also about the game of angles, rotation of strike. अगर आपको याद हो इनिशियली बहुत नॉन सीरियस लेती थी जो डेवलप बोर्ड से, इवन ऑस्ट्रेलिया तो अजीब व गरीब प्लेयर्स T20 खिलाते थे और वो कलर भी नहीं देते थे. लेकिन नाउ T20 क्रिकेट हैज बिकम एन आर्ट और पोलराइज हो गई है. 4 टीम्स अलग हैं जिसमें इंडिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है. फिर मिडिल टीयर टीम्स हैं जिनमें पाकिस्तान आ जाता है, साउथ अफ्रीका है, और फिर लोअर टीयर वेस्ट इंडीज है. T20 की काफी चैंपियन टीम है व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट. नाउ अभी अगर मैं देखूं तो ये जो खुशदिल शाहज हैं या आजम्स हैं, ये यूनिलैटरल और वन डायमेंशनल इनके स्लॉट एरियाज हैं जहाँ पे ये खेलते हैं. अब मतलब लोग बड़ा इम्प्रेस हुए हैं. अभी एक लड़का है अब्दुल्ला शफीक, वेरी टैलेंटेड, नो वंडर, नेशनल उसने वनडे में भी डेब्यू पे 100 किया, नेशनल उसने अपना ये फर्स्ट क्लास डेब्यू पे भी 100 किया, वो एक ही फर्स्ट क्लास मैच खेला है. वो बहुत खूबसूरत और हसीन लगता है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करें तो उसका बड़ा लिमिटेड एरिया है. जो उसकी जोन एरियाज में अगर गेंद आ जाएगा तो वो इफेक्टिव है, तो उसको बड़ी क्रिकेट में फंसाना बड़ा आसान है. और T20 क्रिकेट में भी उसको फंसाना बड़ा आसान है अगर सिस्टम पे वाइड यॉर्कर्स करें. तो उसको पाकिस्तान को वनडेज खिलाना चाहिए थे. आपने उसको खराब किया, गलत फॉर्मेट खिलाया न्यूजीलैंड में T20, फिर आपने उसको टीम के साथ रखा और उसको डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलने दी. सो ये खुशदिल शाह का इम्पैक्ट जो होता है बॉल का, वो 60 डिग्री पे इम्पैक्ट होना चाहिए. अगर आपने एलिवेटेड शॉट मारनी, एलिवेशन 60 डिग्री पे होनी चाहिए. ये लोग जो है ये थोड़ा सा दूर से मारते हैं तो वो ऊपर ज्यादा चले जाता है. इट शुड गो लाइक अ पैराबोला एंड इट शुड कवर मोर डिस्टेंस. या तो आप obnoxious पावर हिटर्स हो ना, लाइक केरन पोलार्ड या आंद्रे रसल, इवन क्रिस गेल, खड़े खड़े मारते हैं, वो कहाँ हिलते हैं, उनसे तो हिला जाता नहीं है. तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की क्रिकेट है ये. आजम unfortunately Moin has been our childhood friend, we have grown up together, we have played together, but I personally feel कि premature entry थी. और आपने अनफिट, ग्रॉसली अनफिट, फिर विकेट कीपिंग उसने की नहीं हुई थी, आपने जबरदस्ती उसको विकेट कीपर रखा. अगर सरफराज को नहीं भी रखना था, अगर आपने कहा कि एज वाज नॉट ऑन हिज साइड, यू कुड हैव. अभी आप उस लड़के को कैसे, वो जो है जो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ए का कप्तान था, रोहिल नजीर, फिर जीतान अशरफ, फिर अखलाक है, मोहम्मद अखलाक है. तो यार ये लड़के पहले खेलते थे, ये बजाय कि अब आजम. अच्छा, फिर आजम को जस्टिफाई करने के लिए आपने ऐसे स्टैट्स दिए कि मोहम्मद वसीम चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर आके कह रहे हैं कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट उसका स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट द स्पिनर्स इन द वर्ल्ड. ओह वाओ, यार मेरा ख्याल है आजम खुद सुन के हैरान हो गया होगा कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ. ठीक है, अब आपने क्या किया, टीम्स की चेंजेस तो ठीक किया,
आपकी टीम अच्छी, अब ज्यादा तगड़ी टीम हो गई। शर्जील का मुझे अफसोस है, अगेन वो डिबेट नहीं है। अब आपने आजम के साथ क्या किया, आपने खुशदिल के साथ क्या किया? सो यू हैव एक्चुअली, आप प्लेयर पाथवे आइडेंटिफाई करके फिर उनकी स्ट्रेंथ्स को देख के फिर उनको ग्रूम करते हैं और इवॉल्व कराते हैं। आप आपने अगर आजम को खिलाना ही था, आप कोई हल्की टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान में खिला देते, उसके बाद आप उसको कहते यार बेटा वापस जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब छाप लग गई है एंड यू आर इन द पाइपलाइन। अब आपने उनको रैटल करके रख दिया है। नेपोटिज्म का उस पे है तो यार वो बच्चा ना हमारी भी औलादें, इधर 22-23 ईयर ओल्ड बॉय। अब आपने उसको पहले तो फिटनेस वाला शुगर उसके साथ लगा दिया आपने, सोशल मीडिया पे जितनी मीम्स उसकी बन गई, इम्प्रेशनेबल एज है, रिएक्टिव एज होती है, बहुत डिसइल्यूजन और डिसअपॉइंट हो सकता है, इतनी कोर हार्ड नहीं होती आपकी इस एज में। फिर आपने टैलेंट उसमें जरूर है, उसकी बैट स्पीड बहुत अच्छी है, इवन कीपर वो अच्छा हो सकता है। तो तभी प्रॉब्लम ये है कि उसको वेट इतना है कि उसकी लैटरल और मूवमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, पैरेलल मूवमेंट्स में। सो ये दिस शोज कि हम इल प्लान्ड है। और हम अच्छा, अब अगर आपने टीम चेंजेस किए तो क्यों किए यार? महीना पहले जो लड़के अच्छे थे वो बुरे हो गए। अब आपने एक दकिया न्यूसी से फिर आके मुझे कह दिया, आपने आके एक इंटरव्यू दे दिया चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स ने कि भाई हमने इसलिए किया कि 7 होने थे T20 इंटरनेशनल्स, 5 न्यूजीलैंड के और 2 इंग्लैंड के, वो कैंसिल हो गए, तो नेशनल T20 बिकेम द बेंचमार्क। यू डोंट डू दैट। ये अगर एशिया में देखें सिर्फ 2 टीमें हैं जिनका बेड़ा गर्क हुआ और आवे का आवा बिगड़ा हुआ। एक श्रीलंका जिन्होंने आज 30 में से 8 निकाल दिए, और एक पाकिस्तान है जो ये हरकतें कर। सो मेरा ओवरऑल ये ख्याल है कि यू नो यू हैव टू एम्पैथाइज। टीम अब आपकी बहुत बेहतर हो गई, पहले वाली अनजस्टिफाइड थी, दैट वाज रिडिकुलस। और अब क्या आपने वो अजीबोगरीब, अब आसिफ अली हैज नेवर डिलीवर्ड एट द हाईएस्ट फोरम। आप कितनी ज्यादा रेपुटेशन पे लेके जाएंगे? तो स्ट्राइक रेट पीएसएल में 179 होगा, या वैसे करियर स्ट्राइक रेट 149 होगा। एक तो हमें मुसीबत पड़ गई, हमारे कुछ स्टैटिस्टिशियंस एनालिस्ट बन गए हैं, और फिर वो कैंपेनिंग शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे। सो आई पर्सनली फील कि आपने कलेक्शन ऑफ स्टार्स तो ले लिए, आपने कलेक्शन ऑफ क्वालिटी क्रिकेटर्स तो ले लिए, बट क्या आप टीम इवॉल्व कर सकेंगे? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग टीम है या ये एक कलेक्शन ऑफ क्वालिटी प्लेयर? सो दैट इज माय क्वेश्चन। गुड वन, गुड वन। एंड या आपने काफी हमें इनसाइट दी वहां पे। आपने एक बात की थी कि आजम एंड खुशदिल दे ओनली हैव वन गियर टू देयर गेम, एंड आई एग्री। आपके पास मल्टीपल गियर्स होने चाहिए इवन इन T20 क्रिकेट टू सक्सीड, क्योंकि हमेशा आपको आकर पावर हिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। समटाइम्स यू हैव टू होल्ड द फोर्ट एंड कंसोलिडेट एंड वेट टिल द लास्ट 5 or 6 ओवर्स टू काइंड ऑफ गो गंग हो। मगर चलिए डॉक आगे चलते हैं, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द प्लेयर्स दैट आर एक्चुअली दैट हैव बीन सिलेक्टेड। और मैं आपसे एक फर्स्ट 11 बनवाना चाहता हूं पाकिस्तान की। तो लेट्स लुक एट द टॉप 6 फर्स्ट। अब इसके अंदर आपके पास कंटेंडर्स हैं बाबर, रिजवान, फखर, हैदर, हफीज, मलिक एंड आसिफ। So these are 7 players and only 5 or 6 will play because you have a barrage of all-rounders. तो कौन आपकी ये top 6 में who will make it? यार सबसे पहले तो मैं तो इस आइडिया के अगेंस्ट हूँ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शुड बी ओपनिंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा। Ideally it should have been शर्जील खान and फखर जमान। और अभी आप अगर देखो तो गेम चेंज हुई है दुनिया में, कि पहले 6 ओवर में हम देखते थे लस्टी हिटिंग और पावर प्ले कैपिटलाइजेशन, 60 हो रहा है, 50 हो रहा है, 54 हो रहा है। पाकिस्तान का बड़ा अच्छा है, पहले पावर प्ले में 45 शायद ये करते हैं ऑन एन एवरेज। अब गेम बनती है 7 से 15वें ओवर में, और फिर फाइनल डैश होता है 15 से 20 ओवर में। अगर आप देखोगे कि बहुत सारी दुनिया की टीमें जो अपने बेस्ट एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं, जो लीथल तेज गेंद करते हैं, वो 7 से 15वें ओवर में आते हैं, तो नया गेंद अब अक्सर नहीं करते। सो मार्क वुड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स यूके इसमें इंग्लैंड की टीम। So at the end of the day, I personally feel कि अगर बाबर आजम का मैं करियर स्ट्राइक रेट देखूं तो 130 है, 130.3। और अगर मैं स्ट्राइक रेट, करियर स्ट्राइक रेट की बात करूं, रिसेंटली पिछले 1 साल में 142 प्लस खेल रहा है रिजवान, बट 129 है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर ये 100 की पार्टनरशिप करते हैं, आपके 2 प्रीमियर बैट्समैन है पाकिस्तान के, ठीक है, दे कैन वॉक इन टू एनी क्रिकेट टीम ऑफ द वर्ल्ड। सो वो 14 ओवर्स ले लेंगे। उसके बाद आपके पास हफीज है, मोहम्मद हफीज का जो लास्ट से लास्ट ईयर था, दैट वाज अमेजिंग। वो ब्रिलियंट अपनी फॉर्म ऑफ द लाइफ में था, बट अभी रिसेंटली ही लॉस्ट हिज फॉर्म, देन ही हैड हिज ओन इश्यूज, डेंगू फीवर हो गया, सो ही हैज बीन इन द थिक एंड एट द रफ एंड ऑफ द स्टिक। सो अभी अगर आप देखो तो हफीज में मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हालांकि ही इज एन अमेजिंग T20 प्लेयर,
और गेंद भी कर लेगा, और अब तो वो भी डर नहीं होगा कि कॉल हो जाएगा, क्योंकि शायद यही इसीलिए बचा के हमने रखा और उन्होंने इतनी बॉलिंग नहीं की। ये एक चीज हो गई। अच्छा, उसके आगे शुभ मलिक, अगेन मैंने आपको कहा है कि जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है इन द आईसीसी टूर्नामेंट डाइसी है। सरफराज, क्या वो रिजर्व विकेट कीपर आप खिलाएंगे? क्या जगह बनेगी कि वो गेम ऑफ एंगल्स खेलता है और नजेस करता है, रोटेशनल स्ट्राइक करता है? अब हमारी ऑन एन एवरेज बहराम वी प्ले 39.3 डॉट बॉल्स इन एन इनिंग्स, सो दैट मींस 6.5 ओवर्स, 6.5 ओवर अगर आप, यानी कि आपके पास 13.5 ओवर रहेंगे जिसपे आप रन करते हो, तो पार्ट को यूएई में क्या होगा, 150 और 160। चलें, अब आपने मुझे कहा कि अब आपकी टॉप क्या बनती है, इसमें मेरी अगर अब वो तो 100% है कि इन्होंने रिजवान और बाबर ने ओपन कर दिया, मैं 3 पे हैदर को खिलाऊंगा, क्योंकि हैदर एक्चुअली बाकी सारे मीडिया प्रेशर और दूसरे प्रेशर, पॉलिटिकल कोलैटरल्स उस तरह आए हैं, लेकिन हैदर इज द वन हु वॉक्ड हिमसेल्फ इन। T20 में इतनी आउटस्टैंडिंग क्वालिटेटिव उसने बारियां ली। नाउ मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि यही हैदर अली था जो प्रोडक्ट था अंडर 19s का, यही हैदर अली जिसने 2 साल पहले कादर ट्रॉफी के फाइनल में बला का 100 किया था। ये 4-डे क्रिकेटर की बहुत ही आला है, टेक्निक इसकी बहुत अच्छी थी, ऑलराउंड खेलता है, क्योंकि आजकल की T20 क्रिकेट में पावर हिटिंग इज नॉट काउ कॉर्नर या लात हटा के आपने मार दिया। अब आपके ऑफ साइड पे भी आपको देखना है, एक्स्ट्रा कवर भी आपने देखना है, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट पे भी आप बहुत जोर की मारते हैं। सो हैदर में डोमेस्टिक क्रिकेट में ये नजर आता था। आई पर्सनली फील कि ये हैदर का फेलियर नहीं था, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कंफ्यूज कर दिया गया था कि उसने क्या करना है। इफ यू रिमेंबर, ही स्टार्टेड विद हाफ सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड, लेकिन वहां पे जब अच्छी टीम के अगेंस्ट गया तो ये वही हैदर अली जो दोनों तरफ खेलता था वो कॉर्नर पे आ गया था, इवन जो पहला डेब्यू पे 50 था। तो मैं ये समझता हूँ कि मैनेजमेंट का फेलियर था। अब अगर वो लड़का आप लेके आए, एंड आई एम वेरी होपफुल, सकलैन मुश्ताक को बहुत कम लोग जानते हैं कि ही इज अ डैम ब्लडी गुड कोच, और दिमाग काफी इंट्रीगिंग है और काफी दिमाग है। सो मुझे उम्मीद है कि हैदर 3 पे। सो अब मेरा हो गया बाबर और रिजवान फॉलोड बाय हैदर, फिर मैं आ गया 4 पे हफीज, और 5 पे मैं रखूंगा मलिक को, 6 पे मैं आसिफ को खिलाऊं, या अगर मेरे में दम है, अगर मैं होता तो मैं आसिफ ना खिलाऊं, मैं इमाद को कॉन्फिडेंस दूं, इमाद वसीम को, ही इज आल्सो अ वेरी गुड हिटर, और 7 क्योंकि मुझे पता है कि शादाब भी है मेरे पास, तो आप 6 पे शादाब कर लें, 7 पे इमाद करें। एंड आई वुड लाइक, जिसना क्वालिटेटिवली नवाज खेला है, तो मैं 2 खब्बों के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि दोनों डिफरेंट खब्बे हैं। और हसन अली इज अगेन 188.88 स्ट्राइक रेट है रिसेंटली उसका, वो उसकी जो हिटिंग है वो 2-3-6 लगा देता है। एंड देन फॉलोड बाय ये जो आपके 2 फास्ट बॉलर्स होंगे या 3 फास्ट बॉलर्स अगर आप खिलाएंगे, ऑब्वियसली फिर नवाज नहीं खेलेगा। फास्ट बॉलर्स आपको पता है कौन खेलेंगे, हसन होगा, और इनिशियली हारिस होगा, और साथ शहनशाह होगा। बिल्कुल। आपने बात की थी लेग स्पिनर्स, मैं बड़ा ब्लंट बोलूंगा, पाकिस्तान में एक टाइम होता था जब हम लोग खेलते थे, मुर्तजा हुसैन ऑफ ब्रेक कर रहा है, हमारा एक होता था पिंडी के बड़े आला ऑफ स्पिनर होता था, तकीर हुसैन था, आपको हारिस भाई उधर से नजर आते थे, फिर वो एक होते थे पाकिस्तान भी खेले थे, सज्जाद वो थे, बड़ा आला गेंद करते थे, वो भी ऑफ ब्रेक। लेग ब्रेक बॉलर एक मेंडेस होता था, उसका असल नाम मैं भूल जाता हूँ, इमरान ताहिर की बारी नहीं आती थी, मुशी होता था, तो ये क्वालिटी थी। दानिश आ गया, कनेरिया आ गया, सकी आ गया, अरशद खान आ गया, तो अभी ये क्वालिटी थी डोमेस्टिक में। अभी कोई क्वालिटी नहीं है। अच्छा। मैं समझता हूँ इनमें अगर मैं वो करूँ, रेट करूंगा लेग स्पिनर्स में, तो जाहिद महमूद स्टार्टेड ब्रिलियंटली, उसका अपना कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, आजकल वो अच्छे गेंद नहीं कर रहा था। उस्मान कादिर इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ बाबर आजम, मरहूम अब्दुल कादिर मैजिशियन का बेटा है, लेकिन आई पर्सनली फील कि अभी उसको असल टीम में टकरी नहीं, क्योंकि वो एक आधा लूज बॉल कर देता है, और दूसरा जब वो इंडिया के अगेंस्ट यूएई में गेंद करेगा इतना छोड़ के, तो शारजा से दुबई जाएगा गेंद। सो और शादाब की फॉर्म नहीं है। सो मेरे ख्याल में ये तीनों एक जैसे ही हैं। तो शादाब को मैं थोड़ा सा इसलिए एज दे दूंगा, नॉट दैट ही इज द वाइस कैप्टन, मैं इसलिए एज दे दूंगा कि बारी भी ले लेता, पूरा बैट्समैन है, ब्रिलियंट है, और बॉलर ये तीनों एक जैसे हैं इस वक्त करंट, वैसे जाहिद को मैं ऊपर रखता। अच्छा। तो ये मेरा है। सो आई पर्सनली फील कि आपको गेम करनी पड़ेगी स्पिनर्स की, इमाद होगा एक, शादाब होगा, और साथ होगा हफीज,
अब देखना यह है कि बाबर कितना चालाक हो सकता है, या एनवायरनमेंट क्या होती है कि वो नवाज को ड्राफ्टिंग करेगा, 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक तो ये चीज एक इम्पोर्टेंट। I am quite satisfied with the team that you've actually made, Doc. Heather Ali की आपने बात की, of course, arguably the most promising young batting talent in the country after Babar Azam. और आपने बात की कि वो उनकी हिटिंग प्राउस भी बहुत अच्छी है, and then his cover drive is a sight for sore eyes. I just love watching Heather Ali. बीच में उनका काफी फॉर्म ड्रॉप हो गया था, and I think rightfully so he was dropped at the point, but now I think he's earned that place back. नेशनल T20 में उनकी शानदार परफॉर्मेंस है, एंड आई वुड लव टू वॉच हिम बैट इन द टॉप 3 एज वेल. तो आपकी टीम से जो मैं कुछ डिफरेंट करूं, बाय द वे आई लव प्लेइंग ऑल ऑफ शादाब, इमाद एंड नवाज. आई वुड डू द सेम. आई थिंक वी शुड बी ब्रेव एंड वी शुड गिव आवरसेल्व्स एक्स्ट्रा ओवर्स ऑफ स्पिन. तो वो हमें करना चाहिए. मगर सिर्फ एक चीज मेरे जो एक कॉन्फ्लिक्ट है मेरे दिमाग में, अगर आपने फखर जमान को खिलाना ना, तो मे बी यू कैन ट्राई ओपनिंग विद फखर एंड रिजवान, और फिर आपका बाबर 1 डाउन आ जाए, उससे आपको वो पावर प्ले इंपिटस भी मिल सकता है. मगर फिर आपका हैदर 4 पे आएगा, हफीज 5 पे आएगा, मलिक 6 पे आएगा. सो ये इसमें बहराम एक सॉरी टू इंटरजेक्ट, एक चीज होगी, अगर हैदर खेलेगा फिर मलिक का मुश्किल हो जाएगा. वही बात है ना. फिर आप 5 पे फखर को खिलाएंगे, क्योंकि फखर कैन बी एन अमेजिंग हिटर अगेंस्ट स्पिनर्स, अगेंस्ट द लाइन, बैटिंग एट नंबर 5. 14-15 ओवर में बारी आई हो, तो आई थिंक a much better bet than Asif Ali. But I think that the team that you selected, I would pretty much go with that as well. Of course, ये भी हो सकता है कि अगर आप 12 overs of spin हफीज, इमाद और नवाज और शदाब से करा लो, like इमाद और नवाज and then शदाब then हफीज, तो फिर आपके पास वसीम जूनियर को ऑप्शन है खिलाने की. he is a really good hitting player as well. वो उनकी जो bottom hand mid on के ऊपर 6 है, broad shoulders, reminds me a bit of Hardik Pandya over there. So maybe you could do that. ये बस I'm throwing out ideas over there, but I'm largely satisfied with the team that you've made. तो चलें आगे चलते हैं, I suppose. And now I want to talk about the last few months or month or so. There's been a lot of shake-up in Pakistan cricket. पहले रमीज हसन राजा आ गए आपके नए PCB chairman. Wasim Khan has resigned as the PCB CEO. Misbah and Waqar have both resigned from their coaching roles. और अब आपके पास आ गए हैं सकलैन मुश्ताक, Matthew Hayden and Vernon Philander. Now, Hayden and Philander were masters of their craft, world-class players. But coaching experience उनका है नहीं as such. Even though they might be the right people with the right mindset, maybe experience counts for something. So I want to know aapki is pe kya raay hai, and the fact that the team hasn't really trained as a unit going into this World T20, will that hurt Pakistan, and how do you see them gelling under these circumstances and such little time? यार रमीज हसन राजा का आना, I personally feel के he lacks nothing. Not that he is an Hsonian and I have that bias, because I am also an Hsonian. I have known Ramiz. He has evolved city level pe as an under-19 player. Came from a cricketing background. भाई international cricketer थे, outstanding superstar थे पाकिस्तान के. अब्बा first class cricketer थे, मंजले भाई first class cricketer थे और representative cricketer थे. उसके बाद रमीज ने डिपार्टमेंट क्रिकेट भी खेली, सिटी क्रिकेट भी खेली, रीजन भी खेला, यूनिवर्सिटी भी खेली. अंडर 19 से ग्रेजुएट हुए सिटी से, और फिर पाकिस्तान अंडर 19 में फर्स्ट टाइम 79 में टूर्ड अंडर जावेद कुरैशी टू इंडिया. उसके बाद टेस्ट मैच क्रिकेट खेली, 198 वनडे, 57 टेस्ट मैच हैं. देन वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एज अ कमेंटेटर, पूरी दुनिया में क्रिकेट के स्ट्रक्चर को देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा. ही वर्कड as a member advisory council of the Pakistan Cricket Board, and I was privileged to be there and working alongside him. फिर he also became chief executive officer. So administrative है, फिर Elite Bank की sports को head किया हुआ है, master of business administration है, know how अच्छी है. So ये तो इसका मतलब है resume तो बड़ा तगड़ा हो गया. We need such a chairman. And on top of that, Doc, he has represented Pakistan with sincerity, the utmost integrity, और बहुत ही अच्छे ambassador रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है. So yes, I do think he is also the right man of the job. But anyway, carry on what you were saying. Now क्या वो अपने इर्द-गिर्द टीम बना पाएंगे? अभी ऐसे लग रहा है कि वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं सारी पावर को. क्या वो सेंट्रलाइज पावर जितना काम है? क्योंकि now running international cricket is not only running a team or selecting a team. आपके उसमें बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं, उसमें आपकी मार्केटिंग है, सेल्स है, कोलैटरल्स हैं, डिजिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, टियर क्रिकेट है, एज क्रिकेट है, स्पेशल क्रिकेट है, फ्यूचर प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, नेशनल ये अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, क्रिकेट एकेडमी है, कैरिकुला है, ट्रेन द ट्रेनर्स है,
मेडिकल पैनल, स्पोर्ट्स एम्ब्रेला। सो उनको डेजिग्नेटेड लोग चाहिए होंगे, ट्रस्टवर्दी लोग चाहिए होंगे, स्किल वाले लोग चाहिए होंगे, एग्जीक्यूटिव्स चाहिए होंगे, और इनको वो नहीं करना होगा कि कॉस्मेटिक्स करके और अपना टाइम गुजार के निकल जाए, जो पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है। आई सिंसियरली होप कि ये अभी मिल के आए कराची में 25 कॉर्पोरेट हेड को, और बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स लेके आए। सो इनको फाइनेंशियली बनाना है, एक फाइनेंशियल मॉडल देना है। So he has to pick cut for role people and right people for the job. And he has talked about cricket economy a lot. तो ये अच्छे आपको साइंस नजर आ रहे हैं कि he's going and talking to all of these investors. Matthew Hayden और वर्नन फिलैंडर की पूरी जो फीस है वो भी बैंक अल्फला के थ्रू पे होएगी. And then he's talked about drop in pitches कैसे वो भी शायद फाइनेंस हो जाएं. So these are good signs. No, there are good signs, but now इसमें दो तीन चीजें हैं. एक तो point by point चलते हैं. Number one, मैं शायद इनकी जगह होता है, would have waited, और मैं मिसवा और जो है वकार इनके साथ वर्ल्ड कप में जाता, या इन पे मलबा गिरता और यहाँ ये परफॉर्म करते. परफॉर्म वो कर नहीं सकते थे जो उनका प्रीडिस्पोजिशन थी और जो उनकी प्रेजेंस थी. अच्छा, और दूसरा ये था कि उस टाइम पे मैं पिक कर रहा होता कि मैंने कोच कौन सा रखना है. अगर फॉरेन कोच रखना है तो क्या आजकल के दौर में जहाँ पे फ्रेंचाइज क्रिकेट एक आसान वे आउट है फॉर ऑल द कोचेज एंड टॉप प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या वो पाकिस्तान के साथ आके स्टक होना चाहेंगे? एक चीज. और दूसरा, वसीम खान का इन एनी केस जो है वो खत्म हो रहा था, जो टेन्योर है इन फरवरी 2022. आई वुड हैव वेटेड स्टिल, और मैं उनको वीड आउट कर देता सिस्टम से, बजाय कि मैं अपने ऊपर एक नेल और लेता. ये तो दो चीजें हो गई. लेकिन ऑब्वियसली ये ही हैज हिज ओन स्टाइल, ही इज अ स्ट्रांग मैन, ही इज फुली बैक, दिमाग उनका काफी तगड़ा है. उसके बाद जो दूसरी आपने बात की, मैथ्यू हेडन अभी आईपीएल में एज एन एनालिस्ट और कमेंटेटर बैठे हुए. सो क्रिकेट के बाद वो कमेंट्री में रहे, वो कभी कोचिंग में आए नहीं. अभी आपने उनको कंसल्टेंट लिया. बेसिकली ही इज नॉट अ कोच, ही इज अ कंसल्टेंट हेड कोच, और हेड कोच आपके होंगे जो कि आर्बिट्री हैं अभी, सकलान मुश्ताक. हेडन का ये फायदा जरूर होगा, और मेरा ख्याल है रमीज ने यही सोचा होगा कि वो उस ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा रहा है जो इनविंसिबल थी for almost a decade or so. वो ruthlessness, वो aggression, professionalism जो है, और mindset. तो वो mindset ऐसे बंदा जब मैथ्यू हेडन आपके ड्रेसिंग रूम में बैठेगा तो वो कैसे नहीं इम्पैक्ट करेगा? इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन अगर वो अभी रिसेंटली सीधा यूएई में आईपीएल करके और पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में आ जाएगा तो वो देखना पड़ेगा कि उसके क्या रिपरकशंस होंगे और उसके क्या माइंडसेट, उसका अपना माइंडसेट अब क्या है. Is he the same Matthew Hayden we have known as a butcher जब वो बैट्समैन था, या अब कुछ वो चेंज हो गया है? वर्नन फिलैंडर, a very intelligent and a high class test match red ball bowler, और अपनी कंड्यूसिव कंडीशंस में वो आउट करता था. वाइट बॉल से घबराता था, एशिया में वो आता नहीं था. कोचिंग का उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं. हमने वर्नन फिलैंडर को क्यों लिया? मुझे ये भी पता है कि किस एजेंट ने एक्चुअली उसको रिकमेंड किया. कॉस्टव नाम है उसका, जो कि लांस क्रूजर का भी एजेंट है, डेव वॉटमोर का भी है, और डोमिंगो का भी है, और शॉन टेट का भी. सो वर्नन फिलैंडर का ये चीज हो गई. आई डोंट थिंक सो. वो मुझे तो अजहर महमूद बहुत बेहतर बॉलिंग कोच लगता है जब व्हेन इट कम्स टू दैट. बट एनीवेज, अच्छा, फिर अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की आपको जरूरत है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ. जो टीयर क्रिकेट बनी नहीं है, नीचे से आपकी रीजनल क्रिकेट, सिटी क्रिकेट, उसकी फिर ऑटोनॉमी कैसे होगी? अभी आपने आके 1 लाख रुपया बढ़ा दिया. ब्रिलियंट. आई टोटली सैल्यूट रमीज राजा फॉर टेकिंग सच अ ब्रेव डिसीजन, और इनका बोर्ड भी बहुत अच्छा है, बीओडी बहुत ही अलग तगड़े लोग हैं. लेकिन उससे क्या हुआ कि तकरीबन अगर आप देखो तो 19 से 20 करोड़ आपका साल का चले जाएगा एक्स्ट्रा. 1.5 बिलियन आप वैसे लगाते हो, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं. कब तक आप पीसीबी जो है वो लायबिलिटीज पिक करें? अभी आपने क्रिकेट इकोनॉमी की बात की बेहरा, तो कट इट शॉर्ट, आपको बोर नहीं करना चाह रहा मैं. नहीं. जो है ना, बेसिकली क्रिकेट की इकोनॉमी वो आती है डीप मार्केट से, और डीप मार्केट डिपेंड करती है नॉट ओनली ऑन इंडिविजुअल ब्रांड्स एंड टीम की परफॉर्मेंस. अब ये इररिलेवेंट हो गया काफी हद तक. ये अब जो है डिपेंड करता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पे. तो अगर आप आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देखें, क्योंकि आईसीसी अब ना लेजिस्लेटिव बॉडी, गवर्निंग बॉडी वो कभी भी नहीं थी, अब तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी नहीं रही, अब तो वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने टूर्नामेंट्स कराने होते हैं. सो उसमें टूथलेस बॉडी है.
अब उसमें अगर आप देखो तो आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो थे 8 साल के 2015 से 2023 के, वो थे $2.2 बिलियन के। ग्लोबल राइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब अगर आप आओ, आपको इंटरेस्टिंग एक और कंपैरिजन देता हूँ। इंडिया के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे 5 साल के 2018 से 23 तक के, वो थे $1.1 बिलियन। अब आते हैं, रमीज ने भी बात की, जो कि आई थिंक विद ऑल माय रिस्पेक्ट आई टेंड टू डिसएग्री स्लाइटली, वो ये है कि आईसीसी 8 साल के जो पैसे हैं वो टोटल $2.5 बिलियन खर्चता है, ठीक है। और उसमें से $270 मिलियन जो शेयर है 8 साल का, वो इंडिया का है, जो पहले 570 होता था, और वो बाकी चला गया एसोसिएट मेंबर्स के लिए, क्योंकि आपने याद है कि 106 को कह दिया था एसोसिएट मेंबर्स को वो T20 इंटरनेशनल्स खेल सकते हैं, टू ब्रॉडन द कैनवस एंड टू हैव द बिगर आउटले, जो कि कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेट्रिएट से कभी भी क्रिकेट नहीं बनती। आपके लोकल्स को क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी कंसोलिडेट बेस बनेगी, कंसोलिडेटेड। अच्छा, अब आप $143 मिलियन 8 साल का मिलता है इंग्लैंड को, और $132 मिलियन ईच मिलता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश, और $94 मिलियन ईच मिलता है, वो मिलता है जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान। और उसमें से 90% जो पैसे आते हैं वो इंडिया से आते हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट सबसे बड़ी है ब्रॉडकास्ट। बिल्कुल। सो इंडिया को 1.1 से 1.5 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है आईसीसी के लिए। ये कह देना कि जी हमारी क्रिकेट डिपेंडेंट है इंडियन पैसों पे, आई डिसएग्री। हम फुल मेंबर हैं और आईसीसी ने हमें हमारा हिस्सा देना ही है। नाउ इट इज नॉट सफिशिएंट। अच्छा, अब अगर आप आओ, जो मैं जिस बात पे आपको लाना चाह रहा था, जो बड़ी स्केरी चीज है, जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका जो ब्रांड वैल्यू है, दैट वाज इन 2019 $6.91 मिलियन। ठीक है, मिलियन कह रहा हूँ, बिलियन डॉलर्स, बिलियन रुपीस, 6.91 बिलियन रुपीस, इंडियन रुपीस। और अब जो है कोविड की वजह से 3.6% नीचे कम हुआ, तो अराउंड 6.1 बिलियन जो है, मैं इंडियन रुपीस कहाँ से कह रहा हूँ, बिलियन डॉलर्स है, $6.1 बिलियन है इसकी ब्रांड वैल्यू। आई एम सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ। उसके बाद अब आप मुझे बताओ, ये तो ब्रांड वैल्यू। अब आईपीएल क्या करने जा रहा है, वो 2 फ्रेंचाइजेस और डाल रहा है, 90 मैच सीजन करेगा। एक तो कैलेंडर में मेजर 2-2.5 महीने ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट है, पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं, बोर्ड्स को पैसे देते हैं। अभी जो ये राइट्स बिके थे आखिरी 5 साल जो आईपीएल के, ये थे 2.2 बिलियन के, ठीक है। और अब ये $6 बिलियन के बिकने जा रहे हैं, जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू अगले 8 साल के आईसीसी के राइट्स की है, वो 3.3 बिलियन है। तो दिस मीन्स के आईपीएल कंप्लीटली इट हैज टेकन ओवर द क्रिकेटिंग कैनवस, जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल बैक सीटेड हो जाएगी। तो क्रिकेट इकोनॉमी जब आपने बात करनी है, आप अपनी बात करते हैं, अभी आपके मसाइल सॉल्व नहीं हो रहे, आपका आउटले बहुत छोटा है पाकिस्तान सुपर लीग का, आपके पास टॉप प्लेयर्स भी नहीं आते, अभी बर्डन है, अभी आपकी यूएस डॉलर पाक रुपी डिस्पैरिटी पे लड़ाई आपकी हो रही है फ्रेंचाइजेस के साथ। तो क्रिकेट इकोनॉमी में अभी बहुत कुछ होने वाला है, हो सकता है, पर इट विल टेक टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट पाकिस्तान, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट की ये जो पोलराइजेशन है, इनको ख्याल करना पड़ेगा। इवन इंडिया को ख्याल करना पड़ेगा कि हेगेमोनिक प्रेजेंस जो है किसी भी चीज की, वो इट एंड्स अप इन ए डिजास्टर। यहाँ तो फीफा के पास गवर्निंग पावर्स थी, आईसीसी के पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। सो ये एक मेरा क्वेश्चन है, जहाँ पे 7 से 8 या $9 बिलियन की अगर रन वैल्यू हो गई आईपीएल की। अभी आपको एक छोटा सा और फिगर बताता हूँ, $350 मिलियन सिर्फ इंडिया से ट्रांजैक्ट हुए हैं इन ल्यू ऑफ द कमर्शियल एयर टाइम सेलिंग। वाओ, कैन यू इमेजिन? और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ है, ये आधा तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है। तो आईपीएल की बात हो रही है, तो यार हम किस तरफ क्रिकेट को लेके जा रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट इज गोइंग टू डाई ऑन इट्स फीट। और ये एक आप एक जगह पे कहते हैं आपने आईसीसी चैंपियनशिप ऑफ टेस्ट क्रिकेट बना दी, हो यार विंडो कहाँ से लेके आओगे? टोटल वर्थ आपकी अगर $3 बिलियन होगी, और एक टूर्नामेंट के इंडिया की जो है वो वर्थ जो है वो $6-7 बिलियन होगी, तो यार मतलब व्हाट आर यू लुकिंग एट? So this is scary and they have to come back to senses, क्योंकि इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन फुटबॉल में अगर आप देख लो, लीग्स प्रीडोमिनेट, और अब फीफा भी इतना तंग आ गया, उन्होंने कहा हर 2 साल के बाद वर्ल्ड कप कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो आपने सोच लिया कि आपने इस फॉर्मेट को ही खत्म करना है,
इन डायनामिक्स को चेंज करना है और आपने बेसबॉल जैसा यूएस में है या बास्केटबॉल है, आपने उस तरह जाना है कि कभी ओलंपिक्स में भेज देंगे बास्केटबॉल की नेशनल टीम, अदरवाइज आपने लीग सिस्टम में जाना है। और अगर आप देखो अमेरिका में ड्रेन हो रहा है टैलेंट, इसका मतलब है T20s ने उधर भी होशियार कर दिया है स्पॉन्सर्स को और कॉर्पोरेट सेक्टर को। और अगर इंडियन मार्केट को कोई ट्रम्प कर सकता है तो वो यहाँ ऑस्ट्रेलियन ये अपना अमेरिकन मार्केट है और या वो चाइनीज मार्केट। तो मुझे तो क्रिकेट डूबती नजर आ रही है इंटरनेशनल। सही नहीं, I 100% agree डॉक्टर साहब कि जो proliferation of cash heavy T20 leagues है, it is hurting international cricket और हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कोई इसमें चेंज आएगा। and maybe you know रमीज राजा उनने ऑक्शंस की बात की PSL में, maybe that can help make that brand a bit stronger and maybe that can help Pakistan cricket। बेराम वो बर्डन किस पे आएगा? अगर आपने ये जैसे ड्राफ्ट से निकल के ऑक्शन पे जाना है, फिर आप मरवाएंगे, कैप आपको खत्म करनी है। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, दुनिया इतनी स्मार्ट हो गई है कि आपने अपनी कैप जो फ्रेंचाइजेस ने है, जो कि 1.5 मिलियन डॉलर की कैप होती थी, वो लेके आ गए आप फॉरेन प्लेयर्स के लिए $800,000 पे। उसी टाइम पे जब PSL जो होनी है आपकी बिकमिंग एडिशन 7 PSL 7, वहाँ पे एमिरेट्स लीग हो रही है और हर टीम में 8 फॉरेन प्लेयर्स होंगे और उनकी कैप $2.2 मिलियन की है। तो प्लेयर्स आपके पास कहाँ से अवेलेबल होंगे यार? you need to grow 5 years and 5 days to actually realize कि हमने अपना sustainability कैसे ले। Right. चले, we can only hope for the best and of course हम तो enthusiasts हैं पाकिस्तान cricket के and cricket in general, we love to watch the sport, especially the international game, so we can only hope and pray। बाकी आपने एक और चीज mention की थी कि you thought that the resignations were a bit ill-timed and I agree, maybe they should have waited a bit, but I am still optimistic with the new management and I'm hoping, you know, chaos breeds perfection in Pakistan cricket। जब एडवर्सिटी बढ़ जाती है हमारे ऊपर तो हमारा भी बेस्ट बार आ जाता है। तो मे बी आई एम क्लचिंग ऑन टू स्ट्रॉज, बट मैं तो उम्मीद रख रहा हूं कि मे बी द टीम कैन परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड। डॉक, आई वांट टू टॉक अबाउट द T20 वर्ल्ड कप, द कंडीशंस, द कंटेंडर्स। तो कंडीशंस तो वी टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर एज वेल कि वी आर एक्सपेक्टिंग स्लो एंड लो पिचेस, वैसे ही स्लो होती हैं और अब तो IPL भी हो गया तो और वेयर एंड टेयर शायद हो गया हो। सो दोस हो गया। हाँ, और तो वहां पे तो 150 160 वाली गेम्स ही मुझे भी नजर आ रही हैं। दैट्स व्हाट आई फील विल बी द पावर स्कोर। सो कीपिंग दैट इन माइंड, यू लुक एट बोथ ऑफ द ग्रुप्स and you look at potential contenders. Now, if you ask me, I think जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर तो इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज are head and shoulders above the rest. South Africa of old अब वो रहे नहीं है। Tabriz Shamsi is the only sort of wild card I can see who can win them games. उसके अलावा तो I don't think they have anyone who is a potential match winner at that stage. And then if you look at Pakistan's group, तो India तो we are quite confident will qualify. Pakistan and New Zealand में I feel like it might be a flip of the coin. My heart says Pakistan, but my brain tells me that 50-50 इन दोनों के दरमियान में. So would you agree with that? Who do you think will be the top contenders in this World T20? India number 1. Across the globe, the best T20 team in the combination. Number 1 India. Number 2, अगर मैं relevance देखूं तो West Indies is going to be my team. Power hitters and they can play with strong base on low and slow pitches and still you can see the ball sailing out of the park. Though you cannot rule out Pakistan. अगर unfortunately हमने कोई special spinner रखा नहीं, हमारे bits and pieces bowlers हैं। इंडिया के पास 5 स्पेशल स्पिनर्स हैं। अगेन आई वुड नॉट लाइक टू रूल आउट पाकिस्तान, लेकिन ये चैंपियन टीम नहीं लगती मुझे। आई विल बी वेरी ब्लंट, माय हार्ट सेज कि अल्लाह करे, लेकिन नो, अल्लाह भी मिरेकल्स उस वक्त करता है जब आप खुद सही प्लानिंग करते हैं। अफगानिस्तान का बैटिंग का इशू है, लेकिन T20 क्रिकेट है, हजरतुल्लाह जज़ई की कोई 4-6 लग गई और उनके प्रोबेबली टू माय माइंड इस वर्ल्ड टूर्नामेंट में इंडिया के पार उनका स्पिनिंग अटैक है, वो अफगानिस्तान का है। राइट। सो मैं इनको एक वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट रखूंगा। वेस्टर्न टीम्स में मुझे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का उनकी रेलेवेंस नहीं नजर आती इन पिचेस पे। लियाम लिविंगस्टन को गेंद नहीं मिलना जितना उसका स्विंग है, जो बैट का स्विंग है, उसका लैटरल मूवमेंट है। आई पर्सनली फील कि न्यूजीलैंड इज वन टीम जो कि टक्कर की टीम है और मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा रिस्पेक्टफुली कि पाकिस्तान मच सुपीरियर टीम इज गोइंग टू बी न्यूजीलैंड। उनका कॉम्बिनेशन, उनके प्लेयर्स को खेलना आता है, उनके मतलब दे हैव द प्लेयर्स जो कि स्पिनर उसको भी बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी टू वो, आई एग्री विद यू व्हेन इट कम्स टू साउथ अफ्रीका, आई एग्री विद यू व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड को आप
के माइंड में शायद वो है कि जो वो अपने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में इंग्लैंड इज एन अनबीटेबल व्हाइट बॉल टीम, राइट, यहाँ पे मुश्किल होगा उनके लिए। उनके स्पिनर्स भी कोई खास क्वालिटी के नहीं है। इंडिया एंड वेस्ट इंडीज और ऑब्वियसली न्यूजीलैंड, चौथे में मैं जबरदस्ती पाकिस्तान को रख लूंगा, बीइंग अ पाकिस्तान। You brought up some really good points over there. England ka I too, Doc, I feel like they might have the batting for this, but if they're going to rely on Moeen and Adil Rashid for spin solely, so I think that might not be enough. I really don't understand why they would not pick Matt Parkinson. He was so impressive अभी जो सीरीज हुई है पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने 2 लेगी 7 खिलाए, सक्सेसफुल भी हुए। मुझे लग रहा था मैट पार्किंसन सिलेक्ट हो जाएंगे, but that's where I think England might have missed a trick. वेस्ट इंडीज ऑफ कोर्स स्टार स्टडेड लाइनअप, हिटर के बाद हिटर आता है, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है, यूथ एंड एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा मिक्स है, बट आई फील लाइक फास्ट बॉलिंग उनकी थोड़ी लैक करती है। द फैक्ट कि आपको रवि रामपाल सिलेक्ट करना पड़ रहा है, that is a bit of a red flag for me, but of course उन्होंने अपने दोनों वर्ल्ड कप्स श्रीलंका और इंडिया में जीते हैं, Asian conditions, so West Indies will be one of the favorites of course. आपने जो फास्ट बॉलर्स की बात की ना, जिस किस्म के वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स हैं वही इन कंडीशंस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिनको कहते हैं ना टुच्चे फास्ट बॉलर, कि जो कि ना एक्सप्रेस हैं और ना नीदर हियर नॉट देयर। तो ये रवि रामपाल वाली आपने बात अच्छी की है कि ये हालत हो गई, उनको लेके आना पड़ा, बट आई बिलीव उनके स्पिनर बुरे नहीं है। वो हेडन वॉल्श इज रियली गुड लड़का, एक जो वो खब्बा है लड़का, मुस्लिम नेम है यार, फेबियन एलन तो नहीं, खब्बा आ जाता है, मैं बताऊंगा आपको, आप आगे चले अभी जब बात कर रहे थे। जी, तो वो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की तो मैंने बात कर ली, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आल्सो दे माइट हैव द बैटिंग फॉर इट, बट ज़ैम्पा पे अगर आप रिलाई कर रहे हो, I like Adam Zampa, but will he be a superstar? I'm not quite sold over there. Again, I will stick to my opinion, of course, respectfully disagree over there. I think Pakistan and New Zealand will be on an even keel. I would put them on an even keel right now, given the conditions. And of course, India is outstanding. But, Doc, Yuzvendra Chahal ka na select hona, that is quite baffling to me. He was, in my opinion, Rashid Khan के बाद अगर कोई एक रेग स्पिनर था दुनिया में उस लेवल पे, तो वो चहाल थे। एंड देन आल्सो आई मीन द बैटिंग तो रिचेस है ना उनके, दे हैव सो मच टैलेंट, बट शिखर धवन मैसिव नेम टू मिस आउट। सो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि यू नो इवन दो ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, दे प्ले आईपीएल, सीजन प्रोफेशनल्स हैं, बट यू नो बिग मैच एक्सपीरियंस शायद वो उस स्टेज पे लैक करते हो, मे बी दैट गोज अगेंस्ट देम, बट दोस आर जस्ट माय 2 सेंट्स। यार इंडिया के अगेन पहले ऊपर से आउट कर लेना उनके दोनों, तो उसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा। फिर रविंद्र जडेजा और नीचे, और सूर्य कुमार यादव जो है, उसकी फ्लैबॉयंस और उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, ही इज वेल इक्विप्ड टू इंटरनेशनल क्रिकेट, कोई प्रेशर नहीं होगा। कमाल ही इंडिया ये कर रहा है कि वो अपना जिस तरह इनको इवॉल्व कर रहा है, जो उनके पाथवेज हैं, बाय द टाइम दे प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट वो लगता ही नहीं कि वो डेब्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको ये फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे कि एक जमाने में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था कि जब वो स्टेट क्रिकेट से आते थे तो ऐसे लगता था कि वो बस दे जस्ट चेंज द ग्राउंड्स। तो मेरे ख्याल में इंडिया बहुत तगड़ी टीम, नहीं श्योर शॉट सेमीफाइनलिस्ट तो है मेरी नजर में। आप ये भी ना भूलें कि महेंद्र सिंह धोनी will also be in the dressing room. Yes, and that is a massive influence in the dressing room. And you know, KL Rahul, Virat Kohli, Rohit Sharma, यही तीन आपके पास किसी भी टीम में आप डाल दें, and all of a sudden you're contenders. So I think we have more or less consensus with respect to the contenders over here. Before I end this interview, Doc, of course you've spent time with the Pakistan team as associate manager and physio. एक तो मुझे उस दौर की जो टीम थी हमारी 90s की, बहुत ही तगड़ी, हमारी शायद हिस्ट्री में लिमिटेड ओवर्स तो एटलीस्ट बेस्ट टीम वही रही है, तो एक तो मुझे जरा बताएं वसीम और वकार जैसी पावर हाउसेस के साथ किस किस्म की मेंटल स्ट्रेंथ होती थी उस टीम में, और आजकल के जो फास्ट बॉलर्स हैं या बाकी टीम मेंबर्स हैं किस हद तक वो लैक कर रहे हैं। And in addition to that, कोई मजेदार किस्से सुना दे हमारे व्यूअर्स के लिए from your time with the team। किस्से तो खैर मैं जिस वक्त मैं टीम के साथ था उस वक्त तो मैच फिक्सिंग का गोश्त ही आगे पीछे फिर रहा था, लेकिन वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, ये जो फास्ट बॉलर्स थे यार, इनमें सेल्फ बिलीफ था और इनको पता था इनमें क्या स्किल है, मेंटली ये स्ट्रांग थे और इनका एक अपना अंदाज होता था जो कि मैं बोलना नहीं चाह रहा। ये सिर्फ ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे और प्रोफेशनल थे और दे यूज्ड टू गिव देयर 100%। मतलब आपको कुछ इस तरह के वाकयात जरूर सुनाऊंगा कि हम थे शायद इट वाज वेस्ट इंडीज और लास्ट टेस्ट था हमारा एंटीगा में ईयर 2000 और वसीम अकरम ने रिफ्यूज कर दिया, बल्कि 6-7 प्लेयर्स ने रिफ्यूज कर दिया। वो टाइम आ गया था कि हम मैच 4 फीट करते क्योंकि जस्टिस क्यूम
रिपोर्ट आ गई थी, पब्लिश हो गई। हम्म, सो वो सुबह के 4-5 बजे जाके इनको मनाया गया, और सब वो टाइम डिफरेंस इतना था, क्रिकेट बोर्ड में भी मुसीबत पड़ी हुई थी, रात उधर थी इधर दिन था, इधर रात थी उधर दिन था। सो एवेंचुअली वसीम अकरम अग्रीड कि हम लोग खेलेंगे, और फिर ये सारे खेले, जो कि वो अनफॉर्चुनेटली इट वाज पुअर एम्पायरिंग कि हम वो टेस्ट मैच लास्ट विकेट पे हार गए थे, जहाँ पे जिमी एडम्स जो आउट था। तो बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैच स्टार्ट होने से पहले कोच में हम बैठे हुए थे, तो मुझे मेरा इनसे काफी शुगर लगता था, बिकॉज आई वाज हिज ग्रेटेस्ट फैन। तो मैंने कहा वसीम भाई क्या करना है, कहते 10 आउट करो, तो उन्हें 10 आउट कर दिए। ग्रेट प्लेयर। उसके बाद श्रीलंका में हम थे और टेस्ट मैच था, तो ये 400वीं विकेट इनकी नहीं हो रही थी, तो ये थोड़ा सा बाहर आए क्योंकि इंसुलिन लगाते थे। तो जब ये बाहर आए तो मैंने कहा जी वो मैंने मोइनुद्दीन हमीद आया हुआ है, उसको मैंने कहा है कि आपकी 400 विकेट उसने कैप्चर करनी है और मैंने बड़ा पोस्टर बनाना है अपने कलेक्शन। तो मुझे कहते हैं कि नहीं यार ये अब जयसूर्या और ये तो आउट नहीं होंगे मेरे से, आता वो रसल आर्नल्ड आएगा ना तो तू देखी मैं ऐसे गेंद छोटा सा बाहर निकालूंगा और थोड़ा सा वाइड करूंगा मोहम्मद वसीम को, और वो स्लिप लगेगी और मेरी 400 में विकेट। गो एंड सी इज 400 विकेट, वो बॉल तो मेरे पास। रसल आर्नल्ड caught मोहम्मद वसीम slightly wide second slip of वसीम। ठीक है, वो इन्होंने मुझे तो यूं करके इशारा किया था कि तो ये थे वसीम अकरम। ठीक हो गया, so that is amazing। बाकी ऑब्वियसली ये एंटरटेनर्स थे, जेल्ड होते थे, बहुत गलत खबरें होती हैं, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स, दे आर वेरी वंडरफुल पीपल। जितने बड़े आइकॉन्स हैं उतने ही अच्छे ये लोग थे, और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिकली सुनाए नहीं जा सकते, जो कि जोक्स हैं। जुगतबाजी में इंजमाम अपना एक मकाम रखते थे, मुश्ताक अहमद एक दूसरा मकाम रखते थे, मोहम्मद यूसुफ छुपे रुस्तम थे। सो वेल इंटीग्रेटेड टीम, और अनफॉर्चुनेटली यार लोग फिर कहेंगे मैं बायस्ड हूँ बिकॉज आई आल्सो बिलोंग टू दैट जनरेशन, लेकिन मैं अब के जब प्लेयर्स देखता हूँ तो मैं आपको एक जाते जाते एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब खेले पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज खेले या अपना पिंडी से खेले, डोमेस्टिक खेले, सो हम लोगों को ये पता होता था कि हमारा गोल होता था हमने पिंडी खेलना, हमें अपनी लिमिटेशंस पता थी, दैट इज इट। हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है पीरियड, हमने नेशनल अंडर 19 खेलनी है पीरियड। जो पाकिस्तान खेलने वाले होते थे वो अंडर 19 से इंजमाम होते थे और अंडर 19 से बासित अली होते थे, और पता होता था राशिद लतीफ का और मोइन खान का कि यार ये वो लीग है, इतना गैप होता था कि यार ये पाकिस्तान खेलेंगे। फिर जो डिपार्टमेंट्स होते थे वो पिक करते थे इनको, और डिपार्टमेंट वाज द गेटवे टू ब्रेकिंग इनटू द पाकिस्तान टीम। और आपको मैं बताता हूँ बगैर एग्जैजरेशन के, हसन काजिम 145 प्लस, मोर देन 500 विकेट्स, फर्स्ट क्लास विकेट्स। जाफर नजीर का तेज तरीन बाउंसर होता था, नदीम अफजल था, और उसके बाद गौहर था, यूनाइटेड बैंक से खेलता था। ये बखियां तोड़ बॉलर होते थे, और ये पाकिस्तान के करीब नहीं आए। ठीक है, एंड नाउ आई सी कि पीपल लाइक आजम खान प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ कि यार हम लोग भी शायद आज की क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन हो, जो कि सोच भी नहीं सकते थे कभी कि पाकिस्तान के करीब भी जाएंगे। हम तो मीडियोकर्स थे, मीडियोक्रिटी थी, पढ़ाई करते थे, शौकीन थे, बट दैट्स इट। कलर मिल गया, यूनिवर्सिटी का कलर मिल गया, दैट्स इट। सो बहुत डीजेनरेशन हुई है। बहुत सारे ऐसे बैट्समैन थे, ब्यूटीफुल बैट्समैन, एजाज अहमद जूनियर था, मोहम्मद रमजान था, ये लोग खेले ही नहीं, आले हैदर था, ये लोग खेले ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट। और आजकल मैं हैरान होता हूँ जब मैं इनकी टेक्निक देखता हूँ कि सेटअप में ये कैसे सर गिर रहा होता है, आगे प्रेस फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, खबे के इन स्विंग पे इनको फौरन पकड़ लिया जाए। तो आई थिंक कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हैज गॉन डाउन टू द डॉग्स। ठीक। Well, thank you for all of your valuable insight, Dr. Saab. बहुत ही मजा आया, and thank you so much for letting me pick your brain, giving me that honor. It's been an absolute pleasure to have you on the show. और I hope आपने भी उतना ही enjoy किया हो. And to all of our viewers, do go check out Dr. Saab's new books, Collector's Eye. If you are a cricket buff, you will love all of this stuff. क्योंकि जो इनकी collection है cricket memorabilia की, it is Guinness World Record बन सकता है इसके ऊपर. So thank you so much, Doc. My pleasure. Thank you very much, Behram. Yeah, yes.
Okay, well, that's a wrap for Volume 51, guys. If you enjoyed this episode, don't forget to like, share, and subscribe. And do hit that bell icon in order to be notified about all of my latest videos. I'll catch you again soon enough with another guest. That's all for now. Qazi off the mic. Have a look at that. Smiles up. Oh, it's nearly taken someone out of the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members. And it went like a rocket.